Hello everyone, welcome back. So in the last lecture we discussed about the trigonometric ratios of specific angles. Okay, we made a table in which we discussed about the trigonometric ratios of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. I hope आप लोगों को टेबल बनाना भी आ गया होगा और आपने उसको याद भी कर लिया होगा. Now in today class, first of all we will be solving numerical problems based on the trigonometric table. That means we have to solve some numerical problems based on directly the ratios of 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay. So first of all we will solve some numerical problems. Then we will come on the next topic, and next topic is going to be the trigonometric ratios of complementary angles. Okay. So let us start with some numerical questions based on your trigonometric table. Okay. I hope कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आप लोगों ने अपने आप से बना के जरूर प्रैक्टिस करी होगी 3 से 4 बार. ओके. नाउ अभी मुझे तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के सारे रेशियोज याद है, तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू यूज कर रहा हूँ. आप लोग इनिशियली जब क्वेश्चंस करें तो एक टेबल बना लें, बट जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की तो शायद आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वैल्यूज आपको भी याद हो जाएगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेस क्लास. Now, questions based on trigonometric table. See, suppose I have to calculate the value of cos square 30 plus sin square 45 minus 1 upon 3 sin square 60. I have to evaluate this. Okay, just question will be in this form. Evaluate. Okay. So in these type of question we have to just put the values and solve. Okay, see, the value of cos 30 is √3 by 2. So √3 by 2 whole square. Why whole square? Because cos square 30 is there. Okay, see, sin 45 is always 1 by √2, so it's 1 by √2 whole square. Okay, and 1 upon 3 sin square 60. The value of sin 60 is √3 by 2, so I have to take the square of √3 by 2. Now just simplification is there. Okay, √3 square is 3 and 2 square is 4. We know. Okay, the square of √3 is 3 and 2 square is 4. Similarly here 1 square is 1 and √2 square is 2. Okay, it's 1 upon 3. See, √3 square is gonna be 3 and 2 square is 4. This 3 will get cancelled out. So your answer is gonna be 3 by 4 plus 1 by 2 and 1 minus 1 by 4. Okay. See, 3 by 4 minus 1 by 4. It's 2 by 4. 3 by 4 minus 1 by 4 is 2 by 4 and 2 by 4 means 1 by 2. So 3 by 4 minus 1 by 4 is 2 by 4 and I am directly writing here 1 by 2. See, 3 by 4 minus 1 by 4, 2 by 4, that is 1 by 2 and 1 by 2 plus 1 by 2. This 1 by 2. If you add this, you will get the answer 1. Now simplification is up to you. You can take LCM or you can solve by taking two terms. It's up to you. Okay. So in this way we have solved the first question. See, this is the first part of the question. Okay. Now यहाँ तो calculation simple थी. थोड़ी और questions लेते हैं हम practice के लिए. Okay. See, the second question is, we have to calculate the value of tan 45 upon cosec 30. Tan 45 upon cosec 30 minus sec 45 upon cot 45. Sorry, plus sec 45 upon cot 45 and then minus 5 sin 90 upon 2 cos 0. Okay, see, this is the question and we have to evaluate the value. See, the value of tan 45, if you go through the trigonometric table, you will get the tan 45 is 1. See, cosec 30, since the sin 30 is 1 by 2, so the cosec 30 is gonna be 2 because reciprocal of 1 by 2 is 2. Okay, similarly sec 45, the value of sec 45, since cos 45 is 1 by √2, the sec 45 is the reciprocal of 1 by √2, that is 2.
cot 45, since tan 45 is 1, cot 45 is also 1. Okay, minus 5, sin 90 is 1 and cos 0 is again 1. So it's a simple calculation. Okay, say it's 1 by 2, it's root 2 and it's minus 5 by 2. See, 1 by 2 minus 5 by 2 is minus 4 by 2. Okay, so and minus 4 by 2 means minus 2. Okay, so 1 by 2 minus 5 by 2. I am simplifying these two terms. 1 minus 5 minus 4 by 2. That is minus 2. Okay, and plus root 2. And plus root 2. So after simplifying, I will get root 2 minus 2. Okay, see what I did. I just simplified this and this. 1 by 2 minus 5 by 2 minus 4 by 2 and minus 4 by 2 is minus 2. Here it's minus 2 and plus root 2 I have written as it is. Now root 2 minus 2, you can leave this expression. Also you can take root 2 common. If you want to take root 2 common, the next form is gonna be like this. If you multiply root 2 inside, you will get the same expression, root 2 1 root 2 root 2 root 2 2. So in this way we have solved the two questions. Okay, let us take final one. Okay, let me take a final question based on this trigonometric ratios of specific angles of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, see the final one is third part. Five cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45. Okay, and in the denominator it is sin square 30 plus cos square 30. Sin square 30 plus cos square 30. See, all the trigonometric ratios are well known, 0, 30, 45, 60 and 90, and we have to evaluate the value. See, cos 60 is 1 by 2 and the square of 1 by 2 is this 1 by 2 square. Okay, plus 4 times sec square 30. The value of cos 30 is root 3 by 2. Okay, so sec square 30 is square of sec 30 is 2 by root 3 and square of that is 4 by 3. Okay, so I am directly writing here 2 by root 3 whole square. The square is gonna be 4 by 3. Okay, tan 45 is 1 square. Okay, because square is there, tan square 45. Similarly, sin square 30. Sin 30 is 1 by 2, so 1 by 2 square, and cos 30 is root 3 by 2, so root 3 by 2 square. I just substitute the values. Okay, just put the values. Now the calculation is the remaining thing. 1 by 2 square is 1 by 4. So yes, I can write this like this. 5 into 1 by 4 plus 4 times 2 by root 3 whole square. See, 2 square is 4 and root 3 square is 3. No problem. 1 square is 1 only. Clear? 1 by 2 square is 1 by 4 and root 3 by square is root 3 by 2 square is 3 by 4. Okay. Now solve numerator and denominator and get the answer. Okay. See, this is the final question which is based on directly putting the values. Okay. Then we will take some more questions, some more type of questions that can be made on this concept. Okay. Though this concept is very easy once you know the trigonometric table. Okay. And for that you have to see the last lecture, lecture number 3 properly. Okay. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार. See, 5 times 5 into 1 by 4 it's 5 by 4. Here 4 16 by 3. Okay. And minus 1. Okay. See, here it's 1 by 4 plus 3 by 4. Can I directly put 1? See, if I solve this 1 by 4 plus 3 by 4, it's 4 by 4 now. If I take 4 LCM, so it's 1. So I am just writing here 1. Okay. See, it's now since denominator is 1, we have to solve this complete numerator only. Okay. If I take LCM of the numerator 4 3 12 is going to be the LCM, and 4 3 are 12, 3 5 are 15.
3 4 12, 4 into 16, 64 minus 1 into 12, 12. Okay, now 15 minus 12 is 3 and 64 plus 3 is 67 upon 12. Okay, so it was your last question. See, this question is also given in NCERT. I hope you have solved the NCERT 8.2. Okay. Now let me rub this, then we will come on the next type of question. But here I am giving you one question to solve, okay? And in that question, calculation is good. I hope you will try, okay? You have to try for that question. Here one question is for you, homework. See, the question is, you have to calculate the value of sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45 plus cot 45. Students, you have to simplify this expression. Some irrational terms can be there, okay, in the expression, but you have to simplify as much as till the step you can solve. Okay, जितना भी simplify हो सकता है उसको बिल्कुल final rationalize करने की जरूरत पड़े तो आप rationalize भी करना और final step तक solve करके फिर मुझे आप WhatsApp पे इसका solution भेजना. Okay, this is also given in your NCERT. Okay, but डायरेक्टली अगर वैल्यू सूट करने के हिसाब से क्वेश्चन देखे जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के लिए. ओके, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे. ओके, नाउ ये तो रहा होमवर्क का क्वेश्चन. वन मोर टाइप. सो this is the second type of questions. Okay, in the second type of questions what we are doing, we are verifying the results. Okay, this is again based on your the previous lecture. Okay, ये भी previous lecture पे ही based है, आपके trigonometry table पे based है. See, verify that means I have to prove that this left hand side is equal to right hand side. Okay, in the three questions. Okay, see students, these three standard results are actually in your 11th standard trigonometry. Okay, if you go in your higher classes you will be remembering this. आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है. बट यहाँ हम केवल इनको वेरीफाई कर रहे हैं for the only for the angles of trigonometric ratios we are already known. ठीक है, क्योंकि हमको पता है 60 डिग्री और 30 डिग्री और इन दोनों का सम 60 plus 30 90, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पता है. तो इन पर्टिकुलर रेशियो के लिए हम ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं. ठीक है, 11th क्लास में आप लोगों को क्या पता पड़ेगा कि ये रिजल्ट कैसे आए, प्रूफ कैसे हो रहे हैं इनके, वो भी आएगा. ठीक है, तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है. ठीक है, चलिए इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं. मैंने यहाँ 3 पार्ट रख रखे हैं, बाकी 2 फिर आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना, आपकी कैलकुलेशन ही इंप्रूव होगी. जैसे थर्ड पार्ट ले लेता हूं मैं. सी, I am verifying the result, this result for part number 3rd. Okay, see left hand side. If I see the left hand side, what is written here? Tan A minus B, and I am given that the value of A is 60 degree and the value of B is 30 degree. If I put the value, see it's 60 minus 30. Now 60 minus 30 is gonna be 30 only, tan 30, and the value of tan 30, if you go through the table you will find 1 by root 3. So in LHS what I get, I will get 1 by root 3. Okay, now let me take RHS. Okay, here I am taking right hand side. Okay, see in the right hand side if I solve, what I will get, tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. ये रिजल्ट है राइट हैंड साइड में. आपको A की जगह 60 डिग्री और B की जगह 30 डिग्री पुट करना है. सो tan 60 minus tan 30 upon 1 plus tan 60 and then tan 30. Okay, the value of tan 60, if you go through the table you will get root 3. Okay, the value of tan 30 is 1 by root 3.
सी ये जो 1030 और 1060 की वैल्यू है ये आपके जो 9 चैप्टर आने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वहां भी काफी यूज होने वाली है। ओके सी 1 प्लस 1060 is √3 and 1030 is 1 upon √3. Okay, see this √3 gets cancelled out. Okay, no problem. And if I solve the numerator, what I will get? In this numerator, if I take √3 as an LCM, अगर मैं यहाँ √3 को LCM लूँ, see this √3 is LCM, so this √3 is multiplying with √3 will become 3 minus 1. Okay, this is the whole numerator. If I solve this numerator, I have solved. Okay, and the denominator, see √3 gets cancelled out, so here only 1 is remaining. 1 plus 1 is 2. Okay, and if I simplify this, what I will get? 3 minus 1, 2 upon √3. See upon 2, so if I take the reverse, it will be 1 by 2. So 2 again gets cancelled out, and I will be getting 1 upon √3. So here you can check the left hand side is after solving I get 1 by √3, and in the right hand side also I have got the 1 by √3. So yes, I can say LHS is equal to RHS is equal to 1 by √3. That means result is verified. The result is verified. Okay. So इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं. Okay. इस टाइप के क्वेश्चन करने से आपकी कुछ कैलकुलेशंस ही इंप्रूव होगी. Okay. चलिए ये हो गए सेकंड टाइप के क्वेश्चन. Now the two remaining you have to solve on your own. थर्ड टाइप के क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है. आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार आया है ये, और इसके अलावा आपके स्कूल एग्जाम के अंदर तो ये यूजुअली पूछा ही जाएगा. ठीक है, चलिए ये देखिए आप पार्ट थर्ड के क्वेश्चन. और मैंने आपको कहा था ना कि जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से इनटू वेरिएबल्स पढ़ा था, हम उसको काफी यूज करने वाले हैं. तो आप देखिए यहाँ भी हम उसी का यूज करने वाले हैं, द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द टू इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स. ओके, चलिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा, sin a plus b is suppose 1 and cos a minus b is also 1. Okay, and what you are given? You are given that the value of a plus b, this a plus b, the value of a plus b is in between 0 and 90 degree. See, what does it represent? The value is greater than 0, okay, but lesser than or equal to 90. वैल्यू जो a plus b की है वो 0 से बड़ी है और 90 डिग्री के इक्वल है, ऐसे छोटी है, मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो हम पढ़ भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. हमारी जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, 0 से 90 के बीच में ही तो बात कर रहे हैं. ओके, सो इसके बारे में ये हमारे इन्फॉर्मेशन दे रखी कि जो a plus b है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाया कर रहा है. ओके, आपको करना क्या है? आपको a और b की वैल्यू निकालनी है. फाइंड a एंड b. इससे हम ये भी कह सकते हैं कि a और b दोनों एक्यूट एंगल्स होने वाले हैं. ओके, क्योंकि a plus b जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होने वाली है. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट. चलिए फाइंड a एंड b. फाइंड a एंड b. सी या इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमको बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए. ठीक है, sin a plus b 1 है. ओके, आपको ये देखना है 0 से 90 डिग्री के बीच में sin की वैल्यू 1 कहां पर होती है? तो sin 91 होता है. ओके, तो guaranteed this sin a plus b, सी इस 1 की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं sin 90. कोई प्रॉब्लम? sin a plus b is equal to sin 90. now here cos a minus b, cos a minus b, here also in the right hand side it is 1. सी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत प्रॉपर याद होना बहुत जरूरी है. ओके, तो आपको ये सोचना होगा कि cos में कहां पर 1 होता है? तो cos में 0 डिग्री पर 1 होता है. सो cos a minus b is equal to cos 0 डिग्री. ओके, यहाँ ध्यान रखें कई बच्चे यहाँ पर साइन ही लगाते हैं 90 लिख देते हैं, इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं, उनको भी पता नहीं होता है. ओके, आप यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल के इक्वल नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है, बट जब कॉपीज में दिखती है तो फिर लगता है कि बच्चे ने क्लास में समझने में इस चीज को कहीं ना कहीं मिस करा है. साइन ए प्लस, जो बच्चे रटते हैं ना मैथ्स को, वो बच्चे डायरेक्ट मैथ्स को रटते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन सर ने इस तरीके से कराया था कि यहाँ पर ये 90 पर 1 होता है तो यहाँ 90 लिख दिया. बच्चों की ये मतलब थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि यहाँ पर 90 आएगा, वो ये नहीं सोचते कि यहाँ पर साइन 90 आएगा. अरे भाई ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक
ये कि बच्चे यहाँ पर साइन से साइन ऐसे काट के दिखाते हैं और बोलते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोग ये भी ना करें। ओके, यहाँ पर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में नहीं है जो कि आप साइन से साइन काट देंगे और a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल है। ओके, हालांकि ये ट्रू है कि a प्लस बी यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने साइन से साइन काटा है यहाँ पर। ओके, एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर हमको ये समझना है कि इस a प्लस बी एंगल का साइन इस 90 डिग्री के एंगल के साइन के इक्वल है। अब अगर दो एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है तो जब भी पॉसिबल है ना जबकि वो एंगल्स इक्वल है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपको और नई चीजें जानने को मिलेगी, बट उसके लिए आपको 11th क्लास में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप केवल इतना समझें कि यहाँ मैं लिखूंगा तो सही, इसके बाद का जो मेरा रिजल्ट बनने वाला है वो ये तो होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इक्वेशन नंबर 1, बट मैं इसको साइन से साइन काट के मत दिखाऊंगा। ठीक है, आप भी साइन को साइन से काटे ना। ओके, इससे ये होता है कि आपको नॉलेज कुछ कम है आप, और ये चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी कि साइन a प्लस बी ये कंप्लीट एक टर्म है जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर साइन और a प्लस बी के बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है जो कि आप इस साइन साइन से काट दें। ठीक है, तो ये गलती ना करें। ओके, और ये बहुत यूजुअल मिस्टेक है जो कि बच्चों की कॉपीज में दिखती है। ये मैं जब कह रहा हूँ जबकि अगर हम 100 कॉपीज चेक करते हैं तो 40% कॉपीज में ये मिस्टेक दिखती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस मिस्टेक को नहीं करें। ओके, नाउ a minus b is equal to 0 degree. I hope it is clear why I am writing a plus b is equal to 90 degree, a minus b is equal to 0 degree. Okay, see now these are what the two equations and two variables. आज के लिए तो पढ़ी थी हमने। Now you need to solve these two equations and get the values of a and b. Okay, let me add this. Adding equation number 1 and equation number 2. If I add this a plus a, it's gonna be 2a and 90 plus 0 is 90. So the value of a is 90 upon 2, that means 45 degree. Okay, if I substitute the value in any of these two, okay, putting in equation 1. See, if I put here, it will be 45 plus b is equal to 90. So b is gonna be 45 degree. Okay, so this they are the third type of questions based on the trigonometric ratios of some specific angles. Okay, note it down. Now taking one more question based on the same concept, then we will come the next topic. The next topic, trigonometric ratios of complementary angles. Okay, and exercise 8.3 is based on that. See, one more question of the same concept. Tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equals to 1 by root 3. Students, if in NTSC this kind of question can come, so you just need to think. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी a और b की वैल्यूज ऐसी हैं जो कि इनको सेटिस्फाई कर रही है, और जस्ट पुट दी एंड जस्ट करेक्ट द आंसर। ओके, और वैसे तो वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शंस में से आप पुट करके भी देख सकते हैं। सपोज एक ऑप्शन आपको ऐसे मिल गया कि a की वैल्यू जो है यहाँ पर 60 और b की 30 है। ठीक है, तो 60 प्लस 30 10 90 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट मींस दे कैन नॉट बी आंसर। तो इस तरीके से आपको देखते ही पता चल जाएगा वहां पर कि क्या आंसर पॉसिबल है और क्या आंसर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 45 और 15 डिग्री देखते ही आंसर बताया जा सकता है। देखो कैसे, 45 प्लस 15 क्या होता है, 1060 होता है, 1060 रूट 3। 45 माइनस 15 क्या होता है, 1030 होता है, एंड 1030 इज 1 बाय रूट 3। दैट मींस आंसर तो ऑलरेडी पता है कि a 45 आने वाला है और b 30 डिग्री है। वो सॉरी b जो है वो कितना आने वाला है, 15 डिग्री। ओके, सी चलो इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर भी सेम कंडीशन गिवन होगी आपको कि द वैल्यू ऑफ a plus b lie in this interval 0 and 90 and also a is greater than b. यहाँ पर a जो है वो b से बड़ा है। It's okay. See, let me complete it fast क्योंकि अपन ने पहले देख लिया इस टाइप का क्वेश्चन। It's
gonna be equal to tan 60. Okay, and after simplifying this I will be getting a plus b as 60 degree. Here also since tan a minus b is equal to 1 by root 3 and I know the value of tan 30 is 1 by root 3, so here a minus b is gonna be equal to, so equation number 1 and 2, solving equation number 1 and equation number 2. If I add these two, a plus a, 2a, 60 plus 30, 90. The value of a is 45. Putting in any of the two, putting in equation 1 से, जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, सी 45 प्लस बी इज 60 डिग्री और द वैल्यू ऑफ बी इज 15 डिग्री. तो जो हमने केवल देख के बता दिया था वो हमने सॉल्व करके निकाल के लिया. ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें. एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर का न्यू पार्ट. ओके, now this is for you. Suppose sin a plus b is equals to 1 and cos a minus b is equal to root 3 by 2. Root 3 by 2. Okay, the same condition is given. The value of a plus b is in this interval and the value of a is greater than b. Okay, you have to calculate a and homework. Okay, solve this. Now ये आपका होमवर्क रहा और इसी के साथ हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए जो कि लास्ट लेक्चर में बेस्ड थे. अब अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. अब है टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में. ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of complementary angles. Now students, complementary का मतलब क्या होता है? complementary angles मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो complementary का मतलब होता है, complementary angles का मतलब होता है the two angles sum of which is 90 degree. दो ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने पर क्या मिलता हो? 90 डिग्री मिलता हो. फॉर एग्जांपल 60 and 30, 60 plus 30 is 90. Okay, 20 and 70, 20 plus 70 is 90. Okay, 44 and 46. Okay, 1 degree and 89 degree. These all are complementary angles. Now we will be relating these two. Okay, हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो complementary angles होते हैं उनके trigonometric ratios में क्या relation होता है. ठीक है. Now अब हम ये भी समझेंगे क्यों वैल्यू sin 30 की और cos 60 की इक्वल आ रही थी. ओके, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. चलिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस अगेन आई एम मेकिंग राइट एंगुलर ट्रायंगल. द होल ट्रिगोनोमेट्री इज अराउंड दिस ओनली. ओके, सो लेट मी टेक अ राइट एंगुलर ट्रायंगल. से दिस एंगल इज C and these two are acute angles. एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं क्योंकि a प्लस बी जो है इनकी वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होंगे. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना ही है. तो अगर ये 30 तो ये 60, अगर ये 20 तो ये 70, अगर ये 50 तो ये 40. ओके, अगर ये
5 डिग्री, सपोज ये एंगल 5 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये 85 डिग्री होगा। कुछ भी कर लो, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए एंड डी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अगर मैं यहाँ बात करूँ साइन ए की, अगर मैं यहाँ बात करूँ साइन ऑफ एंगल ए, तो अब मैं फटाफट लिखूंगा साइन ए इज गोना बी BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, चलिए साइन ए की वैल्यू मैंने देखी कि BC अपॉन AB होगा। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ cos B की, cos B की, तो एक बात बताओ, cos B, अब इस B के लिए भी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इस A के लिए ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, इस एंगल B के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये भी क्या आया, ये भी BC अपॉन AB आया। तो मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मिला sin A इज इक्वल टू cos B, sin A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। और ये कब मिला, जबकि A और B दोनों क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। ओके, अब एक बात बताओ, यहां पर अगर ABC एंगल सी तो है, अगर मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की बात करता तो ये 180 डिग्री था। ओके, और एंगल A प्लस एंगल B, अगर मैं इस एंगल 90 डिग्री को उधर पुट ले जाऊं तो ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, जिसको कि मैंने 90 डिग्री लिख दिया। तो यहां पर एंगल A कैन, एंगल A प्लस एंगल B इज 90 डिग्री। ओके, these two are acute angles and angle B can be written as 90 degree minus angle A। तो यहां पर अगर मैं इस B की जगह 90 माइनस एंगल A पुट करूं तो B क्या बन जाता है, B बन जाता है 90 माइनस A। तो यहां से हमको मिला कि sin A जो है वो cos 90 माइनस A के इक्वल होता है। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं इस A को 90 माइनस B लिखता, इस A को 90 माइनस B लिखता तो cos B किसके इक्वल हो जाता, sin 90 माइनस B के। तो यहां से हमको समझ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो इस तरीके से इक्वल होते हैं, जो sin थीटा की वैल्यू है वो cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होने वाली है। अब यहाँ वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने यहाँ पर a से रिप्रेजेंट करा, थीटा से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो sin का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इसके अंदर, तो रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के अंदर वो होता है cos। sin a हमेशा cos 90 माइनस a के इक्वल होता है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब ये दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक है। वैसे दोनों तरफ से जो ट्रू चीजें होती है उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये हायर क्लासेस में पता चलेगा आपको। बट यहाँ पर मैं केवल लिख रहा हूँ कि sin a की वैल्यू हमेशा cos 90 माइनस a के इक्वल होगी और सिमिलरली cos a की वैल्यू यहाँ पर sin 90 माइनस a के इक्वल होगी। क्लियर। सो दीस आर द रिजल्ट्स, ठीक है, क्योंकि sin a जैसे cos b के इक्वल है वैसे ही cos a भी तो sin b के इक्वल है। आप देख रहे हो यहाँ पर अगर आप cos a की वैल्यू निकालो तो cos a कितना होता है, cos a होता है bc अपॉन ab। ओके, cos a होता है bc अपॉन ab और sin b क्या होता है, sin b सॉरी cos a होता है आपका ac अपॉन ab, cos a होता है ac अपॉन ab और sin b भी होता है ac अपॉन ab। ओके, तो cos a और sin b इस तरीके से इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। तो ये है कि sin a cos 90 माइनस a के इक्वल होगा और cos a sin 90 माइनस a के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से रिलेट करता किसको, tan और cot को, तो tan और cot भी इक्वल में भी रिलेशन मिलता मुझे, आपको मैं दिखा देता हूं लाकर, ठीक है। हालांकि ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाद में तो आपको रिलेशंस याद रखने हैं, ठीक है। तो sin का देख लिया हमने cos के साथ, अब बात करते हैं tan की। ओके, चलिए यही बता देते हैं आपको। अगर मैं यहां पर tan a की वैल्यू बताऊं, पूछूं आपसे tan a की वैल्यू बताओ, tan a की वैल्यू क्या होने वाली है, क्या BC अपॉन AC होने वाली है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अगर मैं cot b की वैल्यू निकालूं, cot b की, तो cot b क्या होने वाला है, cot b सी cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा तो BC अपॉन AB होने वाला है, अगेन BC अपॉन AB। तो यहां से हमको क्या मिला, सॉरी नॉट AB, इट्स AC C। तो हमको यहां से क्या मिला कि जो tan A है वही cot B है। So this tan A is again equal to cot B. Clear? No problem. So in this way we understand that sin A is equal to cos B, tan A is equal to cot B. With the same concept, if you compare, you will get cos sec A. It's gonna be equal to sec B.
जो cosec a होगा, ये आपका काम है इसको करते रहना निकाल के कि जो cosec a है वो sec b के इक्वल आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। नाउ इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर a और b दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका जो अगर a और b दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो एक का साइन दूसरे के cos के इक्वल होगा, ठीक है, एक का tan दूसरे के cot के इक्वल होगा और एक का cosec एक दूसरे के sec के इक्वल होगा। इन सबको समझते हुए हमने रिलेशंस बना के लिख दिए और इनको रिलेट कर दिया। देखिए कैसे रिलेट कर दिया, ये सारी चीजें आपके समझने के लिए थी। अब जो रिलेशंस है वो लिख रहा हूं मैं और ये रिलेशन आपको अब याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है रिलेशन वो लिख लेते हैं हम। सी जो आपको रिलेशन याद रखना है वो ये रखना है कि sin थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। क्लियर? दैट मींस अगर मैं यहां थीटा की वैल्यू 20 पुट करता हूं तो ये किसके इक्वल होने वाला है? cos 90 माइनस 20 मतलब cos 70 के। जो sin 20 है वही cos 70 है। क्लियर? जो sin 20 है वही cos 70 है। जो sin 10 है, जो sin 10 है वही cos 80 है। जो sin 40 है वही cos 50 है। समझ में आ रही है बात? तभी तो जो sin 30 है वही cos 60 है। याद आप देखो, याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यू sin 30 की थी 1/2 वही cos 60 की थी 1/2। तो क्यों दे दोनों इक्वल तक समझ में आया आपको? तो जो sin थीटा है वो हमेशा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली जो cos थीटा होगा वो sin 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, बिकॉज थीटा एंड 90 माइनस थीटा दीस टू आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द एक्यूट एंगल्स। आप देख लो थीटा को 90 माइनस थीटा का ऐड करोगे आपको 90 मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, यू नीड टू रिमेंबर। सो ये रिलेशन यूज क्या करेंगे अपन? अब जैसे मुझे साइन को cos में कन्वर्ट करना है, कभी भी मुझे साइन को cos में कन्वर्ट करना है, मान लो मुझे कहीं दिख गया sin 5 डिग्री और मुझे इसको cos में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिख दूंगा cos 85 डिग्री। sin 5 डिग्री को मैं लिख दूंगा cos 85 डिग्री। कैसे लिखूंगा? मैं 5 डिग्री को लिखूंगा पहले 90 माइनस 85 और 90 माइनस 85 मतलब cos 85। क्लियर? तो sin 5 इज सेम एज cos 85। सो ये है रिलेशन जो कि हमको यूज करना है। ये हुआ फर्स्ट रिलेशन। द सेकंड रिलेशन इज tan and cot, in between tan and cot. This is the first one. The second one is in between tan and cot. So the value of tan theta is equal to cot of 90 minus theta. Okay, and similarly cot of theta is tan 90 minus theta। क्लियर? मतलब जो वैल्यू tan 15 डिग्री की है, जो वैल्यू tan 15 डिग्री है वही वैल्यू cot कितने की है? वही वैल्यू cot 75 डिग्री की है। ओके, क्योंकि 15 और 75 ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, आप रख के देखो यहाँ पर 15 90 माइनस 15 इज 75। ओके, सिमिलरली जो वैल्यू cot 1 डिग्री की है वही tan 89 डिग्री की है। क्लियर? ये हो गया tan और cot के बीच में रिलेशन। और जो लास्ट आपको याद रखना है वो याद रखना है cosec और sec के बीच में। इससे याद रखें जब भी मुझे tan को cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे पास दो मेथड है। एक तो मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दूं, एक तो मेरे को पता है कि tan थीटा 1/cot थीटा भी होता है, तो मैं tan 20 को 1/cot 20 भी लिख सकता हूं। और एक और वे जो है वो लिखने का वो ये भी है कि मैं tan 20 को cot 70 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए हैं। क्लियर? चलिए थर्ड की बात करते हैं। जो थर्ड रिलेशन है वो है cosec और sec को रिलेट करता हुआ। तो cosec और sec को रिलेट करता हुआ जो रिलेशन है वो है cosec theta is always equal to sec 90 minus theta. Similarly sec theta is equal to cosec 90 minus theta, and this is the final one. So yes, we related the trigonometric ratios of complementary angle. जो sin है वही cos है, जो sin 20 है वही cos 70 है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो जो वैल्यू cosec 45 की है वही sec 45 की होगी। ठीक है? अगर आप चेक करें जो वैल्यू cos 25 डिग्री की है वही sec में 65 डिग्री की होगी, क्योंकि 25 और 65
Also, when added, they give the 90 degree. That means complementary angles. I hope clear to everyone. Okay, आपको ये तीन रिलेशन अच्छे से याद कर लेने हैं. जो 8.3 एक्सरसाइज है वो केवल इसी पे बेस्ड होने वाली है. चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी अपन. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं. चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं अपन. यहाँ पर बस मुझे आपको 3-4 क्वेश्चन करके दिखाने की जरूरत है, उसके बाद तो आप ही लगा लोगे क्वेश्चन. ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है. सपोज आपको इसको सिंपलीफाई करना है या इवेल्युएट अपने को वैल्यू निकालनी है. आपको दे रखा है sin 10 डिग्री अपॉन cos 80 डिग्री. बोल रहा है भाई इसकी वैल्यू निकालो. बहुत आसान है. 10 डिग्री 80 डिग्री, 10 डिग्री 80 डिग्री. हालांकि हमको ना तो sin 10 डिग्री की वैल्यू पता है ना cos 80 डिग्री की वैल्यू पता है, बट हमको ये पता है कि 10 प्लस 80 क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो बस sin 10 को आप क्या लिख सकते हो. हमको पता है कि जो sin थीटा होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा के इक्वल. ठीक है, तो अगर मैं sin 10 को इस फॉर्मूले से रिलेट करके लिखूं तो ये बनने वाला है cos 90 माइनस 10. बोलो, मैंने न्यूमरेटर में sin 10 को cos 90 माइनस 10 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और रिलेशन मैंने ये यूज कर लिया जो कि अभी पढ़ा था. क्लियर. cos 80 जो है अब इसको मत छेड़ना. एक चीज जरूर ध्यान रखें, आप जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें जैसे sin और cos को जो कि कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशन से रिलेट हो रहे हैं, तो किसी एक को चेंज करें, दोनों को चेंज ना कर दें, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा. वापस दोनों चीजें एक नए क्वेश्चन की फॉर्म ले लेगी. ओके, तो cos 90 माइनस 10, अगर मैं इस 90 माइनस 10 को सॉल्व करूं तो ये बन गया cos 80 डिग्री और डिनोमिनेटर भी cos 80 डिग्री. cos 80 से cos 80 कैंसिल, आंसर इज 1. यहाँ पर कई क्वेश्चंस के अंदर आपको दिखेगा आंसर 1 और 0 ज्यादा रहेंगे. ठीक है, so here I have written the 6 questions. These 6 questions will give you the idea how we will solve the questions based on complementary angles. Okay, trigonometric ratios of complementary angles. Now if you solve these questions, these 6 questions, you will be ready to solve any of the questions based on trigonometric ratios of complementary angles. Okay, so here सी फर्स्ट वाला सेकंड वाला ये काफी सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बता देता हूं. ठीक है, फिर मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. इनमें से 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपको ही करने. क्लियर, मैंने लिख जरूर दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. सी इट्स sin 62 cos 28. अभी हमने देखा कि 62 और 28 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. 62 प्लस 28 90 डिग्री हो रहा है. बस आपको यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि आपको चेक करना है कि कौन से दो एंगल्स मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, मतलब दोनों एंगल्स का सब 90 डिग्री हो रहा है, उनमें से किसी एक को चेंज करना है. जैसे यहाँ पर sin 62 डिग्री है, इफ आई चेंज दिस sin 62 इनटू cos, सो sin 62 विल बी cos 28 ना, अभी भी बताया था मैंने. तो जब ये cos 28 बन जाएगा cos 28 अपॉन cos 28 1. सिमिलरली यहाँ पर sec 42 को जब आप चेंज करोगे तो sec का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका cosec. ओके, sec का रिलेशन होता है cosec से, तो ये बनेगा cosec 48 cosec 48 भी 1 होगा और 1 माइनस 1 0 बनेगा. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सिमिलरली आप यहाँ सॉल्व करोगे तो सी 38 एंड 52 एट 38 एंड 52 whether they are getting 90 or not, 90 हो रहे हैं तो आप किसी एक को चेंज कर लो, one only. Okay, see if I change cos 38 it will be changed into sin 52. ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 52. तो ये बन जाएगा sin 52 into cos 52. ओके, अच्छा यहाँ है sin 38. अच्छा, इसको हमने बनाया था sin 52 into cos 52. तो अगर मुझे इस टर्म को यहाँ से कट करना है, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी sin 52 into cos 52 बनना चाहिए. sin 52 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इस sin 38 को आप यहाँ भी चेंज कर लो. ये बनेगा cos 52 sin 52 cos 52 sin 52 cos 52. These two are like terms, they will get cancelled out, plus minus. Okay, so in this way these questions are solved. See, I am gonna solve this question and this question. ये तो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिए. चलिए एक ही और कर दूंगा मैं आपको, है ना. तो ये 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपके लिए. एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं इस बोर्ड को रब करने वाला हूं. ओके, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार. तो नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3. See steps carefully. Here I am starting with third one. You can check here
40 and 50 they are getting 90. If you add these two, ये दोनों 90 हो रहे हैं. Okay, so I have to change one of them. See, sec 40. Let me write the question again. First of all, I am writing the question. Sec 40 sin 50 plus cos 50, and the last one is cos sec 40. See, sec 40, if I change in cosec, so it can be written as cosec 90 minus 40. We know sec theta is always cosec 90 minus theta. So for theta is equal to 40 degree, I just put sec 40 as cosec 90 minus 40. Now I won't change this because I have to change only one of them. Okay, plus cos 50. Now cos 50 can be written as cos is always related with the sine. The cos complement cos theta is always sin 90 minus theta na. So cos 50 can be written as sin 90 minus 50. Okay, and cosec 40 will be the same. Now हमने यहाँ पर दो रिलेशन यूज करे, तो बेटर है हम ये दो रिलेशंस को साइड में लिख के बता दें कि हमने क्या यूज करा है. क्या यूज करा है हमने एक तो ये चीज यूज करी है कि जो sec थीटा है वो cosec 90 माइनस थीटा के इक्वल है, एंड जो सेकंड थिंग हमने यूज करी है वो यहाँ पर क्या यूज करी है कि जो cos थीटा है वो इक्वल है sin 90 माइनस थीटा के. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस स्टेप 90 minus 40, if you simplify, you will get cosec 50 and it is sin 50. Similarly, 90 minus 50, it is sin 40 and it is cosec 40. Now, cosec 50 can be written as 1 upon sin 50. You must remember the relation, reciprocal relation. Okay, here also let sin 40 be the same and cosec 40 can be written as 1 upon sin 40. Cosec and sin are reciprocal of each other, so they will get cancelled out. See, it is 1 plus 1 and your answer is 2. Okay, let me take another one. The question number 4th. Note it down, then I will be solving question number 4th and then question number 6, and with these two questions we will be completing the chapter today. We will be completing not the chapter, we will be completing this lecture. Okay, we will finish this lecture. In this chapter, the remaining thing is your trigonometric identities, and that is going to be very important part. We will be discussing that in your next lecture. Okay, see, let me solve one more question, the question number 4th. Okay, in the question number 4th, it's tan 7 degree. Okay, multiply with tan 23 degree, tan 60 degree, very important one, tan 67 degree, tan 80 degree, 83 degree. Okay, see, all of them are in product. ये सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है एक्चुअली हमको. जब भी कोई साइन ना लग रहा हो बीच में, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है. चलिए, वही काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है, इनमें से ढूंढ ढूंढ के निकालना है आपको एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को. सी 783 90 हो रहे, इनको साथ में लिख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू combining the complementary relations. 7 and 83 are giving you complementary. Okay, similarly 23 will be related to tan 67. Okay, क्योंकि 23 और 67 को भी आप ऐड करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा, एंड द लास्ट वन इज tan 60 डिग्री. नाउ tan 60 डिग्री तो वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे. See, you have to solve only one of them. Okay, so either I can change tan 7 or I can change tan 83. So let me change tan 7. Tan 7 could be written as cot 90 minus 7, and tan 83 be, let tan 83 be same as tan 23 could be written as, can be written as cot 90 minus 23, and let tan 67 be same, and tan 60 I know the value of tan 60 is √3. Okay, now 90 minus 7, it is cot 83, and tan 83, can I write here 1 upon cot 83?
See, tan theta is always equal to 1 upon cot theta. So tan 83, I just used the reciprocal relation as well. I just wrote tan 83 as 1 upon cot 83. Okay. Similarly here, if I solve 90 minus 23, I will be getting cot 90 minus 23, that is cos 67 degree, and tan 67 degree can be written as 1 upon cot 67 degree, and root 3 is same as it was. Okay. So see, these two cancel out, these two cancel out, 1 into root 3. So 1 into root 3, your answer is root 3. Clear? So it was your question number 4th. Question number 5th is same. Okay, you will be solving this. And the last is question number 6. With this question, we will be finishing this chapter, finishing this lecture. Okay, Raj. See, wrote it down. So in this question, in the final question, see, we have to find the product of these. Tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, and here the last term is tan 89 degree. So they all are in multiply. Okay, and I have to get. See, this dash suggests that tan 3 के बाद आया होगा tan 4 degree, then tan 5 degree, then tan 6 degree, and the last one is tan 89 degree. Okay. Now students, in these kinds of question, मैंने जैसा बताया आपको केवल क्या देखना है, आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट्री. अगर मैं 1 के साथ 1 का कॉम्प्लीमेंट देखूं 89 डिग्री, तो देखो 1 और 89 डिग्री मिलकर 90 डिग्री बन रहा है. ओके. 2 का कॉम्प्लीमेंट 89 से पहले आया होगा tan 88. ओके. 3 के साथ क्या आया होगा, 3 के साथ आया होगा हमारा tan 87. tan 4 के साथ आया होगा tan 86. ओके. सिमिलरली अगर मैं tan 44 डिग्री तक जाऊं, मतलब यहां से मैं tan 44 डिग्री जाऊं, तो tan 44 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हुआ होगा tan 46 डिग्री. ओके. अब tan 44 के साथ tan 46 रिलेट हो गया. ओके. तो tan 45 जो है वो ओनली ऐसा नंबर बच गया जिसका कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री तो एक ही बार आएगा ना 1 से 89 डिग्री के बीच में. ओके. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 6th वाले को. सी 6th वन, tan 1 degree, I am writing with it tan 89 degree. Okay, tan 1 degree, tan 89 degree. Similarly, tan 2 degree with tan 88 degree. Okay, they are in product. Okay. Similarly, with tan 3 degree, it's gonna be tan 87 degree. In this way, if I proceed the terms, see this dash means कि tan 4 के साथ अब tan 86 लिखा होगा, tan 5 के साथ फिर tan 85 लिखा होगा. ओके. एंड लास्ट वन tan 44 के साथ रहा होगा tan 46, उसके बाद tan 45 अकेला बच गया होगा. ओके. तो tan 45 को भी ना भूलें, ये tan 45 हो गया. Now these all are in product. Now same concepts. I have to change one of them. Okay. So let me change one of them. See, tan 1 degree. If I change tan 89 degree, it can be written as cot 90 minus 89 degree. Okay. Similarly, it's tan 2 degree. Tan 88 can be written as cot 90 minus 88 degree. Okay. It's tan 3 degree, and in the product, it's cot 90 minus 3. Sorry, 90 minus 87. Tan theta cot 90 minus theta. Okay. Now dash remaining is tan 45, and you know the value of tan 45. Okay, it's 1. So the value of tan 45 is 1. Now see, 90 minus 89, it will be cot 1. Okay. Similarly here it's tan 2 into cot 2, tan theta into cot theta 1, तो ये सब 1 बन जाएंगे. ओके. tan 3 cot 3, and similarly in this way the final one is into 1. Okay. They all are in multiply. The last entry will be the 1 only. Okay. So see,
ये इस तरीके से बन गए tan थीटा इनटू cos थीटा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ओके, एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं हम, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। इसको 1/tan 1 डिग्री लिख के बता दो। ओके, इसको लिख लेते हैं हम 1/tan 2 डिग्री। सिमिलरली इसको लिख लेते हैं 1/tan 3 डिग्री, and similarly the final is 1. So now you can check, see 1 into 1 into 1, okay, your answer is gonna be 1 only. Clear? So these are the questions. Okay, ये कुछ questions हमने किए हैं based on trigonometric ratios of complementary angles. Now I hope आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी. Now in the next lecture we will be solving two or three questions on the same concept. Then we will be starting the final part of this chapter, the exercise introduction of 8.4, and then you will see that we have good methods, we have better methods to solve the questions we have solved previously. Okay, जो क्वेश्चंस हमने ट्रायंगल बना के करे थे, अब हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। उन आइडेंटिटीज से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिलेट कर देंगे। ओके, यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रिलेट किया है, वहां हम हर एक एंगल के लिए रिलेट कर लेंगे। ओके, कि sin थीटा और cos थीटा कैसे रिलेट होते हैं, tan थीटा और sec थीटा कैसे रिलेट होते हैं। ओके, नॉट फॉर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस इस पे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, complete homework and submit the homework on my WhatsApp number. Okay, those who don't have my WhatsApp number or not, those who are watching the video but they don't have the contact. Okay, they don't have contact. You can comment or see I am writing here my number. You can WhatsApp me on this number so that I'll be adding you in the group. Okay, in the group where I suggest I share the practice sheets. Okay, and I check the solutions. Okay, now till then take care, bye bye, enjoy.